Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के महिमा भरे So, नाम। so today the Lord is going to speak to every one of you very particularly, very much personally. आज परमेश्वर हम सब से बात करेगा और हर एक से बात करेगा, Because He wants His children should all the time walk in His holy God's plan. क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे पवित्रताई में हमेशा परमेश्वर के उस महिमा भरे प्लान के अनुसार चलते रहें। Several times our mind, our thinking from our own flesh. और कई बार हम अपने दिमाग से और अपनी समझ से ही चलते रहते हैं। But God wants all the time we have to fulfill the God's plan in this earth. और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसी का ही जो हमारे लिए जीवन के लिए प्लान है उसे ही पूरा करें इस जमीन पर। So today He wants to give us the focused eyes towards the Lord Jesus Christ. और आज हमें वो उन आँखों के बारे में बताना चाहता है जो हर समय परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। So whenever our spiritual eyes inside it is focused towards Christ, और जब भी हमारी आत्मा की आंखें हमेशा यीशु मसीह की ओर लगी रहती हैं, automatically the worldly eyes it will be all the time fulfill the God's plan. तो ये संसारी आंखें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं वो परमेश्वर के प्लानों को पूरा करती रहती हैं। So today God want to speak to every one of us about our focus in life. आज परमेश्वर हम सब से बात करेगा कि हमारा ध्यान किस तरफ है। Several times our focus is to fulfill our worldly need. और बहुत बार हमारा ध्यान होता है कि संसार की अपनी चीजों को कैसे हम पूरा कर लें। The worldly blessings, the worldly day-to-day life essential thing. वो चीजें जो आशीष हमें अपनी रोजमर्रा की जीवन में चाहिए, हमारा ध्यान उसी पे ही रहता है। But that worldly things God knows that will be provided 100% for every one of us. पर परमेश्वर उन बातों को जानता है और 100% वो आपके जीवन में उनको जरूर देगा। You will never lack anything. Only thing you should give importance to your spiritual life. आपको किसी भी चीज की घटी ना होगी, पर आपको अपने आत्मा के जीवन की ओर ध्यान देना है। So today the Lord want to give you the focused spiritual eyes towards Christ. और आज परमेश्वर आपको समझाना चाहता है कि अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगा लें। So the eyes, the worldly eye in our own body, the eyes God given. Whenever we are looking good, the good thing will be happen. But the same eyes, whenever it is looking the bad, so the bad thing will be happen in our lives. तो संसार के रूप में जो हमें आंखें दी हैं, अगर हम चीज़ों को अच्छी आंखों से देखते हैं तो अच्छा होता है, अगर हम बुरी आंखों से उन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे जीवन में भी बुरा होता है। Because everything is through the eyes only, it is going inside our mind, then our heart, then it is openly it is fulfilled through our deed. और जो भी चीज़ें हैं वो हमारी आंखों के द्वारा ही हमारे दिल और दिमाग में जाती हैं और हम वैसे ही बर्ताव करने लग जाते हैं। So today the Lord want to give every one of those who are here listening the God's word, और the spiritual eyes the Lord want to give to you. और आज आप सबको परमेश्वर वो आत्मा की आंखें देना चाहते हैं जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं। Automatically you will all the time you will see Jesus. और हर समय आप अपने आप देखना कि आप यीशु मसीह को ही देखते रहेंगे। So because this message is very essential for every believers to grow in the Lord Jesus Christ. आज जो हम वचन बांटेंगे ये हर उस विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है। If you are grow spiritually, the worldly need will come. That is the secret in the Bible. जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो संसार की जो जरूरतें हैं वो अपने आप पूरी होती चली जाएंगी। Several times we are thinking first the worldly thing, that's why we are not getting anything. और बहुत बार हम संसार की चीजों को पाना चाहते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। That's why we are in failure. और इसीलिए हम निराशा में जीते हैं। That's why we are not having peace. और हमें शांति नहीं होती है। That's why all the time unwanted sorrow, unwanted thinking, we are not happy. और हर समय हमें एक ऐसा दुख हमारे जीवन में काम करता रहता है और हम खुश नहीं हो पाते हैं। Today everyone you pray to the Lord, Lord, I want to grow in my spiritual life. Open my understanding, Lord. God will answer your prayer. और आज आप इस समय में प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ और वह मेरी समझ जो तेरी ओर से है खोल दे मेरे अंदर। So everyone you open your Bible, Ephesians chapter 1 verse 18. आए हम सब अपनी बाइबल को खोले नए नियम में इफिसियों 1:18।
So this word of God is very important. Everyone note this word and you should read that word. Through the word of God only, God will speak to us. Through the word of God only, God's plan to bless every one of us. और आप इस वचन को अपने पास नोट कर लीजिए और अपने जीवन में इसे बार बार दोहराएं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कैसे काम करेगा. So this word is one prayer of Apostle Paul to the God's people, the believers. और इस वचन में एक हम प्रार्थना को पढ़ते हैं जो पौलुस के द्वारा करी गई विश्वासियों के लिए. This word says like this, I pray for you that your eyes, your heart may be enlightened. और यहाँ पे पौलुस प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आंखें और दिल परमेश्वर में ज्योतिमान हो जाए. So then the another word says like this, your eyes focused and clear. और इस वचन को एक तरह से और भी हम पढ़ सकते हैं कि आपकी आंखें सीधी परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए और साफ रास्ते पे लगी होनी चाहिए. Light will flood your heart and you will understand the hope given to you when God chosen you in your holy calling. और जो रोशनी है परमेश्वर की आपके दिल में एक बाढ़ की तरह आ जानी चाहिए और उसके वचन की जो समझ है परमेश्वर को की जो आपको दी गई है वो एक उम्मीद के जैसे आपके जीवन में काम करनी चाहिए. The last part of this word says, Ephesians 1:18, then you will discover the glorious blessings that will be yours together with all the God's people. और इस वचन के आखिरी हिस्से में इस तरह से लिखा है, और जब तुम उसे पा लोगे तुम महिमा भरे जीवन से भर जाओगे और आप और परमेश्वर इकट्ठे होके उसको जिएंगे. Dear friends, God want to give us the glorious blessing. पर प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपको एक महिमा भरी आशीष को देना चाहता है. Glorious blessing that is through the Holy Spirit. और वो महिमा भरी आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा होगी. Today you should in your depth of your heart you should ask the Lord, Lord, I want the glorious blessings in my life. और आज अपने दिल की उन गहराइयों से परमेश्वर से मांगे कि वो तेरी महिमा भरी आशीष तो मुझे दे दे. If you are filled with the glorious blessings, the glory of the Lord will be all the time in your body. जब आप उस महिमा भरी आशीष से भर जाएंगे तो वो महिमा हर समय आपके जीवन में भरी रहेगी और आपके आसपास रहेगी. To receive the glorious blessings, your eyes should be clear. और हमेशा अगर हमें उस आशीष को लेना है महिमा की तो हमें अपनी आंखों को साफ रखना है. Sometimes our eyes are not clear, we used to put an eye drop. और आप समझते हैं अगर आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ हो जाए, बीमार हो, तो आपको ड्रॉप डालना पड़ता है. Then your eyes will be clear. और फिर वो साफ हो जाती हैं. The same way here, the powerful prayer, I pray that eyes of your heart may be enlightened, your eyes focused only with a clear vision. और यहाँ पे पौलुस इस तरह से कहता है कि आपकी आंखें ज्योतिमान हो और आपका जो ध्यान है पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगा रहे. Several times our eyes are filled with the lustful things. और बहुत बार हमारी आंखें ऐसी लालच की आंखों से भरी रहती हैं. So we should change today. और हमें बदलना है अपने आप को. Because the eye God given us to only focus the glorious blessings. और आंखें हमें परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए दी हैं कि ताकि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की उस महिमा की ओर लगा सकें. Check your eyes today. अपनी आंखों को जांचें आज. Because this word of God is for every one of us, including me. और जो ये वचन है ये सबके लिए है, मेरे लिए भी उतना ही है. So we should totally transform into the image of Christ. That is the God's expectation. और हमें अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह में बदलना है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर पिता हमसे चाहता है. We are living in the last days. How long we will live for the worldly things? आपको पता है हम आखिरी अंत के दिनों में जी रहे हैं. कितनी देर और संसार के लिए जीने पाएंगे हम. Our father expected, he already shed his blood for us. He already raised us along with him through the resurrection power. Now we have to live and walk in the light every day. हमारे पिता ने यीशु मसीह के द्वारा उस लहू को हमारे लिए बहा दिया है और उसे तीसरे दिन जी उठाया है ताकि हम उस जी उठाने वाले जीवन में जिएं. The glorious blessings God want to give you. अब वो महिमा भरी आशीषें परमेश्वर आपको देना चाहता है. For that your eyes should be
fully focused only on Jesus on the cross. और इसके लिए आपकी आंखें गड़ी रहनी चाहिए उस क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। Eyes means the entire face will be focused in particular thing. आंखों का मतलब है कि जो आपका चेहरा है पूरी तरह से एक ही ओर लगा रहना चाहिए। If I turn here, my entire face already turned here. अगर मैं अपनी आंखों को इस तरफ घुमाता हूँ तो मेरा चेहरा अपने आप इस तरफ घूम जाता है। The first thing, through the eyes only it will touch the people who are before me, the camera before me. So then it will go into my mind. That is the creation of the unique these things of the God's creation. और सबसे पहले मैं अपनी आंखों से लोगों को छूता हूँ, फिर इस कैमरे के द्वारा मैं उन तक पहुँचता हूँ। ये एक अद्भुत परमेश्वर ने विज्ञान बनाया है। First the sight, the look, then only the mind will recognize what is that, and then it will go into your heart. पहले आप देखते हो और आपका दिमाग समझता है और तब आपके दिल में जाता है कि ये क्या है। Today God want to give you new eyesight. आज परमेश्वर आपको एक नई तरीके की आंखों को देना चाहता है। Clear and focus eye. वो जो साफ है और उसका ध्यान जो परमेश्वर That की ओर है, only look upon Jesus. जो हमेशा यीशु मसीह की ओर देखती रहे। Only look upon the glorious suffering on the cross. हमेशा उस महिमा भरी उस दर्द को जो उसने हमारे लिए उस क्रूस पे सहा। You will not deviated with the worldly things. आप संसार की ओर भटकने ना पाएंगे। So today we are going to meditate what are the things are distracting our eyes. और आज हम इन बातों को देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारी आंखों को भड़का देती हैं और भटका देती हैं। So I will give you the word of God. Note it because this word will give you the mighty powerful spiritual breakthrough. मैं आपको वचन दूंगा, आप उन्हें नोट कर लीजिए ताकि ये आपको एक आत्मा में बहुत बड़ा एक छुटकारा दें। So several times we are the God's people. We are already received the salvation and filled with the Holy Spirit. The worldly sin used to attack every one of us commonly. और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने उद्धार पा लिया है और इस संसार में अभी भी जी रहे हैं, और जो ये संसार का पाप है आपके ऊपर हमला करता है बार बार। So that's why your spiritual eye need the spiritual insight with the wisdom of God. और इसलिए आपकी जो आंखें हैं उनके अंदर परमेश्वर की समझ होनी चाहिए ताकि आप उन बातों को समझ सकें। Because by seeing the things that is not wrong. देखना किसी चीज को गलत बात नहीं है। Then how it will go inside, that is the wrong. वो आप उसे किस तरह से अपने अंदर ले लेते हैं वो बात गलत है। So by seeing that something, immediately in your inner man the wisdom will speak to you. This is not for you. Go away. Run away from this. और जब भी आप किसी बुरी बात को देखते हैं, जो आपके अंदर वो समझ जो परमेश्वरीय है वो आपको बताती है कि ये तेरे लिए नहीं है और इससे दूर हो जा। Immediately you should recognize your status and fully tuned focus. Zoom. How we are making zoom in our mobile. In the same way we have to zoom towards the cross. और एकदम से हम इस बात को समझ जाते हैं कि या ये मेरे लिए नहीं है क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अलग कर दिया है, और आपका ध्यान पूरी तरह से जूम के जैसे परमेश्वर की ओर चला जाता है। There is a fight between the God's wisdom and the worldly foolishness. और यही वो लड़ाई है जो परमेश्वर की बुद्धि के बीच में और संसार की मूर्खता के बीच में है। If you are seeing something that is not suit for you, you should obey the God's wisdom instead of the worldly foolishness. अगर कोई चीज आप देखते हैं और आपको पता है ये आपके लिए नहीं है, तो परमेश्वरीय बुद्धि का इस्तेमाल करें, मूर्ख ना बने। The small foolishness will destroy everything. छोटी सी मूर्खता सारी अच्छाइयों को बर्बाद कर देगी। So Ecclesiastes chapter 10 verse 1 says like this. सदोपदेश उसका 10 उसका 1 इस तरह से कहता है। So these passages in the Old Testament, those who are new to the Bible, you can go through the index and you can find Ecclesiastes chapter 10 verse 1. ये पुराने नियम में है, जो लोग बाइबल में नए हैं, ये पुराने नियम की किताब है इक्लेसियास्तेस सपोदेश 10 उसका 1। Here the Bible says the dead flies can make a whole bottle the perfume sink. और ये इस तरह से बताती है कि मरी हुई मक्खी एक पूरी परफ्यूम की बोतल को भी उसमें से बदबू ला सकती है। So the same way little foolishness can cancel out the greatest wisdom. The good people will be lose their holiness
through the small foolishness. और अगर हम छोटी छोटी जो ऐसी भूलें कर देते हैं अपने जीवन में, जो हमारे पास परमेश्वर की वो बुद्धि परमेश्वर ने दी होती है, हमें पीछे धकेल देती है। So you should not allow foolishness inside your eyes. तो अपनी आंखों में कभी भी उस मूर्खता को, उस छोटी गलतियों को ना होने दें। So that's why God blessed us with the family life and marriage life. और इसलिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है और शादी दी है। So when you are going out from the God's plan, the foolishness will overcome you. और जब आप परमेश्वर की उस योजना से बाहर चले जाते हैं, वो मूर्खता आपके ऊपर काम करने लग जाती है। So the family life and marriage life is a God's heavenly constitution. और परमेश्वर ने परिवार दिया है और शादी दी है, ये परमेश्वर का एक लॉ है, एक उसकी आज्ञा है। Inside your marriage life, inside your family life, God's holiness will be there. और आपकी शादी के अंदर परमेश्वर की वो पवित्रताई होनी चाहिए। Whenever your eyes allowed the foolishness with a foolish reason, you will be destroyed. और जब भी आपकी आंखें उन मूर्खता की बातों की ओर ध्यान लगाती है और उन्हें मानती हैं, आपका जीवन बर्बाद होने लग जाता है। So many people, they used to go out of the family life, out of the marriage life. और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परिवार से बाहर चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं। ऐसे ही लोग अपनी शादियों से बाहर भी चले जाते हैं By receiving the foolishness of the people word. और संसार की उस मूर्खता को अपने जीवन में लेने लग जाते हैं। Bible very much talk about the wrong people. Their word will be like a honey and milk. और परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, जो लोग ऐसे होते हैं उनकी बातें हमें बहुत ही मीठी शहद के जैसी लगती हैं। So many times we are hearing the outside of the God's plan, the word of the people. और बहुत बार हम लोगों की बातें सुनने लग जाते हैं परमेश्वर की योजना से बाहर होके, जो हमें अच्छी लगती हैं। If somebody is speaking about their kind of the need, their situation, the sympathy will come into everyone's heart, then that will lead you to the heavenly, that lead you into the hell of fire. और अगर कोई अपने आप को अपनी मजबूरी बता रहा होता है और आप उसको गलत तरीके से लेते हैं, तो ऐसी बातें आपको परमेश्वर ने जो आग जलाई है शैतान के लिए, उसकी ओर ले जाती है। Foolishness should not go inside your eyes. मूर्खता आपकी आंखों में नहीं जानी चाहिए। Only you should be all the time allow the wisdom of God. हमेशा अपने आप को परमेश्वर की उस बुद्धि के अनुसार ही चलाने की कोशिश करें। So we should live like Jesus, with a new creation, with a new lifestyle every day. और हमें यीशु मसीह की तरह जीना है, उस नई सृष्टि के अनुसार कि उसने मुझे नया बना दिया है, हर रोज वैसा ही जीना है। Don't allow foolishness inside your eyes. मूर्खता और भूलेपन की बातों को अपने अंदर ना आने दें। So be in the God's plan inside your family with the Holy Spirit. हमेशा परमेश्वर की योजना में रहे, अपने परिवार के अंदर उस पवित्र आत्मा के द्वारा। Galatians 3:27, it's talk about very clear. गलातियों 3:27 इस तरह से कहता है, ये नए नियम में है। So everyone, you take this your Bible, Galatians 3:27. All of you who were baptized into Christ, into a spiritual union with the Christ and the anointed, you have clothed yourself with Christ. That is, you have taken on his characteristic and values. और तुम में से जितनों ने मसीह को बपतिस्मे में लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। So the meaning, what is the meaning? Whoever accepted Christ in their life, we are keeping Jesus in our body. तो इसका मतलब ये है कि किसी ने भी यीशु मसीह को अपने अंदर लिया है, उसने यीशु मसीह को पहन लिया है। You are understanding this word, how you will do the sin. आप समझ रहे हैं इस वचन को कि आपको कैसे करना है? Christ is living in you. यीशु मसीह आपके अंदर जी रहा है। That means your eyes will be all the time focused on Jesus. इसका मतलब है आपकी आंखें हर समय यीशु मसीह की ओर लगी हुई हैं। Several times we want to wear a very beautiful dress. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही सुंदर कपड़ा पहनना चाहते हैं। That is good. अच्छी बात है। More than that, उससे भी ज्यादा Jesus should live in our body. यीशु मसीह मेरे इस शरीर में जीना चाहिए। We are dressing the holiness of God. हम उस परमेश्वर की पवित्रताई को पहन लेते हैं अपने ऊपर। So the Christ character
should be inside our heart. और जैसे उसका चाल चलन है वो हमारे दिल में बस जाना चाहिए। So we should have a change, dear friends, in our life. हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है मेरे भाइयों। Because every day, what is the God's plan? We have to change. We have to transform into the image of Christ. और हर रोज परमेश्वर की यही योजना है कि अपने आप को हम बदलते चले जाएं यीशु मसीह की उस पहचान के अंदर। So you should know that you are clothed yourself with Christ. और आपको इस बात को पता होना चाहिए कि आपने जो ये पहना है आपने यीशु मसीह को भी पहना है। That should be come in your mind all the time, whenever you are doing, whenever you are thinking wrong things in your mind. और ये बात हर समय आपके दिमाग में होनी चाहिए कभी भी आप कुछ गलत कर रहे हैं या सोच रहे हैं। This body belongs to Jesus. ये शरीर यीशु मसीह का है। How I can do sin in my own body against Jesus? तो मैं कैसे पाप कर सकता हूँ यीशु मसीह के खिलाफ अपने शरीर के साथ में? Because this message is the need of this hour for every believer. क्योंकि ये जो वचन है इस समय और इस घंटे के लिए हर किसी की जरूरत है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। Without holiness we should go to the hell of fire. अगर हम पवित्र नहीं हैं तो उस नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। We should protect ourselves through our spiritual focus eyes. हमें अपने आप को बचाना है अपनी आत्मा की आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाए रखते हुए। Romans 13:11-14. नए नियम में रोमियो 13 उसका 11 से 14। Everyone note this word, very important word. ये बहुत ही जरूरी आयत है, आप इसे नोट कर लीजिए। So you can home you can meditate it again and again. आप घर में जाके इस पे बार-बार मनन करें। Because Jesus is coming very soon. यीशु मसीह बहुत जल्द ही आने वाला है। We have to live and walk in the day, walk in the light. हमें आपको उस दिन में चलना है, उस रोशनी में चलना है। We are running out of time. हम समय निकलता जा रहा है हमारे हाथों से। This word 11 says we are running out of time. और 11 आयत इसकी कहती है कि समय निकलता जा रहा है। Romans 13:11 says, रोमियो 13 उसका 11 ये कहता है, wake up, for उठ जाओ। our salvation is nearer now than when we first believed. उठ जाओ क्योंकि आपका उद्धार का समय बहुत निकट आ गया है, वो समय पहुंच गया है। Dear friends, salvation means the first day salvation, it should grow. Not only one day salvation, every day our salvation should renew with the Holy Spirit. उद्धार का मतलब ये है कि हर रोज हम उसमें बढ़ते चले जाएं, विश्वास में बढ़ते चले जाएं और उसे नया करते चले जाएं। That's why the salvation is nearer. इसलिए वो उद्धार हमारे करीब है। The 12 very clearly says the night almost gone. और 12 वचन कहता है कि जो रात है पूरी तरह से अब खत्म होने पे है। Day of salvation will be here. आपके उद्धार का दिन पहुंच ही गया है। Remove your dark. अपने अंदर से वो बिंदिया अंधकार की हटा दे। Remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of light, right living. अपने अंदर से वो बुराई और अंधकार की बातों को हटा दे और परमेश्वर की चमकदार रोशनी वाले कपड़ों को पहन लीजिए। So to live like this, we need a focused eyes with the righteousness of God. और इस तरह से जीने के लिए हमारी आंखें एक तरफ यीशु मसीह पे लगी रहनी चाहिए ताकि हम धार्मिकता के द्वारा जी सकें। So the 13 word very clearly says, because we belongs to the day, we must live decent lives for all to see. और 13 वचन कहता है क्योंकि हम उस दिन से जुड़े हुए हैं तो हर किसी को अपने आप को अच्छा कर लेना है उस दिन के लिए। We have to live a decent life. आपको एक अच्छा जीवन जीना है। Because we are the testimony of Jesus Christ. क्योंकि हम उसकी गवाही है यीशु मसीह की। How can we do the sinful things, dear friends? हम कैसे पाप की चीजों को कर सकते हैं प्रिय मित्रों? So here the word of God very clearly says, don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness. और बाइबल साफ-साफ कहती है कि उन बातों में ना जुड़े जो हमें अंधकार में और बुरी पार्टियों के अंदर और पीने की आदतों के अंदर ले जाती हैं। We should look upon the salvation. अपने उद्धार की ओर देखें। Whenever we are nothing, we should enjoy in the joy of the salvation. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप इस बात में आनंद करें कि आपका उद्धार हो चुका है। God blessed us, then we used to go for parties. जब हमें परमेश्वर आशीषित करता है तो बहुत से लोग पार्टियों में जाने लग जाते हैं। You should focus your eyes with Jesus, dear friends. आप अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाए रखें प्रिय मित्रों। So then the another word says,
you don't participate in parties or in sexual promiscuity and sexual immorality living. और इसके वचन में ये भी साफ साफ कहता है कि अपने आप को उन पार्टीज के अंधकार में ना ले जाएं और सेक्स की दुनिया में ना ले जाएं. Dear friends, that's why you should understand that the adultery written in the Bible, that is the caution, warning for every one of us. प्रिय मित्रों, आप इस बात को गहराई से समझ ले. व्यभिचार के बारे में बाइबल में लिखा है कि ये खतरनाक है आप लोगों के लिए. So that's why God blessed us with the families and marriage life. इसीलिए परमेश्वर ने हमें परिवार और शादियां दी हैं. If anyone is going out of that, you should come back with the forgiveness of God and you should not go back in the old ways anymore. अगर कोई भी ऐसा है तो उसे वापस परमेश्वर की ओर लौटना है ताकि आप उसकी माफी पा सके और संसार में दोबारा ऐसे कामों में ना मुड़े. Because all these things are coming through the eyes, the kind of the different focus and the foolishness by listening the sweet word of the opposite sex. और ये सारी बातें हमारे अंदर आने लग जाती हैं मूर्खता के कारण, जब हम वो जो हमारे दूसरी तरफ है उस गलत बातों को, व्यभिचार की बातों को सुनने में हमें बहुत मीठी लगती है, हमें मजा आने लगता है. Your discussion should be holy. आपकी जो बातचीत है वो पवित्र होनी चाहिए. To whom you are talking, that is very important. आप किससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है. What is the subject of your talk, that is very important. आपकी बात का जो विषय है वो क्या है, ये भी बहुत जरूरी है. Whoever may be, we should be today focused. Our eyes should be focused because our eyes should be full of the Holy Spirit with a clear sight. चाहे वो कोई भी हो, आपकी आंखें यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए और अपने जीवन को मोड़े और आपका जो ध्यान है परमेश्वर की ओर ही रहना चाहिए. The same word Romans 13:13, the last part says quarreling and jealousy. और इसी 13 की जो आखिरी जो आयत में लिखा है कि कुड़कुड़ाना और जलस रखना एक दूसरे से. End quarrel in your home. आपके घरों में ये जो तू मैं है इसे खत्म करें. There should not be a fight in your home for small reason also. आपके घर में किसी भी छोटी बात की वजह से लड़ाई नहीं होनी चाहिए. All of you should be filled with the Holy Spirit. Your home will be like a heavenly abode. आपका घर, आप लोग हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहने चाहिए और आपका घर एक ऐसा होना चाहिए कि वो उस जगह की उपस्थिति को ले सके. Your home is a heavenly home. आपका जो घर है वो स्वर्गीय घर होना चाहिए. That's why Luke 17:21 very clearly says the kingdom of God is in you. और इसलिए लूका 17:21 कहता है कि परमेश्वर का राज्य आप ही के अंदर है. So then the Romans 13:14, instead clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let your think about ways to indulge your evil desire. और इसलिए 14 वचन कहता है कि अपने आप को उसकी मौजूदगी से पहन लो और इससे भटकने ना दो संसार की उन बुराइयों की उन इच्छाओं से. Clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. परमेश्वर की उस मौजूदगी से अपने आप को पहन लो, उन कपड़ों को पहन लो उसकी मौजूदगी से और पवित्र आत्मा से भर जाओ. If the real anointing is upon your head, अगर वो सच्चा अभिषेक आपके ऊपर है, you will go away from the sinful things. आप अपने आप उस बुराई से, पाप से दूर हो जाएंगे. You will flee away, run away from the sinful things. आप उस बुराई और पाप वाली बातों से भाग के दूर हो जाएंगे. Philippians 2:12. फिलिपियो 2 उसका 12. So these things also very important. और ये बातें बहुत ही जरूरी हैं. So continue to work for your salvation, that is cultivated, bring it to full effect. और आपको अपने जो उद्धार है उसके लिए लगातार काम करता रहना है. जो ये दिल की जो जमीन है उस पे लगातार खेती करते रहना है. So we have to strive hard to work out our salvation. हमें मेहनत करके अपने उद्धार के लिए काम करना है. So not a one day salvation, every day the joy should increase for our salvation. एक दिन उद्धार का दिन नहीं उसे मनाते रहना नहीं है कि मैंने यीशु मसीह को पा लिया और सब ठीक है और बाकी दिन पाप में जीना है, ऐसा नहीं. So हर दिन हमें उस आनंद में जीना है, पवित्रताई में जीना है. So the Philippians 2:12 is very clearly says, continue to work out your salvation, that is cultivate it, bringing it to full effect, actively pursue spiritual maturity,
with inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. फिलिपियो 2:12 इस तरह से कहता है, सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही कभी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करते हुए अब तुम मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार पर कार्य करते रहना. Actively pursue spiritual maturity with awe-inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. और लगातार हमें उस उद्धार के लिए हर रोज हमें काम करते रहना है कि हमें बुराई में नहीं जाना, बुरी संगति में नहीं जाना. हर रोज अपने उन चीजों को पहचानना है पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम बुराई से अलग ठहरे रहें. This word says, if we doing sin, Jesus' name will be exalted. ये वचन कहता है कि अगर हम पाप करेंगे तो क्या यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकोगे? Here says, discredit the name of Christ. तो हम उसके नाम को नीचा कर देंगे ऐसे करके. Dear friend, the name of the Lord, He is blameless. We should not do sin anymore. प्रिय मित्रों, परमेश्वर का जो नाम है उस पे कोई दोष नहीं है, तो इसलिए हमें भी पाप नहीं करना चाहिए. So you should strive hard for your salvation every day. तो आपको मेहनत करके अपने उस उद्धार को बचाए रखना है रोज ही. So again, Luke 13:24. लूका 13 उसका 24 इस तरह से कहता है, Strive hard to enter through the narrow door. मेहनत करके उन संक्रिय दरवाजों से चले जाओ. Force aside unbelief and the attraction of sin. और अपने आप को उस जो आपको अलग करती है परमेश्वर से और पाप को अलग करके उस रास्ते पे चलते चले जाओ. So the narrow door should be our focus through the focused clear vision. जो वो छोटे रास्ते हैं, संक्रिय रास्ते हैं, वो ही हमारे आंखों को हमेशा परमेश्वर की ओर लगाए रखते हैं. So you should force aside, put aside unbelief and the attraction of the worldly sin. आप पूरी ताकत से उस संसार की बुराई को, अंधकार को साइड में रख के यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाए रखें. How many of you want to go through the narrow door? आप में से कितने वो लोग हैं जो उस संक्रिय दरवाजे में से होकर के जाना चाहते So हैं? where is the narrow door? कौन सा है ये संसार? है वो ऐसा रास्ता? Which place the narrow door? कहाँ पे है वो संक्रिय रास्ता? Heaven is the only narrow door. सिर्फ वो स्वर्ग ही है जो वो एक रास्ता है. So you should focus your eyes to enter through the narrow door. अपनी आंखों को उस तरफ लगाए रखना है कि आप उस संक्रिय दरवाजे से होके जा सके. So two things, important things. One is our salvation, another is to enter into the narrow door. तो दो बातें बहुत ही जरूरी हैं. एक तो आपका उद्धार और दूसरा कि आप उस छोटे दरवाजे में से होके जा सके. For that every day you need a practice. इसलिए हर रोज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है. Every day you need a practice, then only you will get the prize. और हर रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी तो आपको इनाम मिलेगा. So your salvation, work hard with your salvation every day. इसलिए अपने उद्धार के साथ रोज काम करते रहे कि आप भटके नहीं. The worldly things should not touch you anymore. संसार की चीजें आपको ना छू पाएंगी. So all the time strive hard to enter through the narrow door. हर समय मेहनत के साथ उस संक्रिय रास्ते में से जाने की कोशिश करते रहें. You cast out all the unwanted worldly sin and focus your eyes only for Jesus. संसार की वो सारी चीजें जो आपके जीवन के लिए नहीं है जरूरी, उनको निकाल के फेंक दीजिए अपने जीवन से और अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाए रखिए. So finally, how we can have our focused eye upon Jesus? तो आखिर में हम कैसे अपनी आंखों को हर समय यीशु मसीह के ऊपर लगाए रखें? This is very important word, 2 Corinthians chapter 5 verse 9. ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण वर्ष है, 2 कुरिन्थियों उसका 5:9. So the last part of this word says, 2 Corinthians 5:9, our ultimate goal and our only ambition is to be live pleasing to Jesus.
तो इसका आखिरी हिस्सा इस तरह से कहता है कि आखिरकार हमारे को लेना क्या है कि और हमारी क्या हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह को जो वो चाहता है हम वो कर पाए। Our life should be only pleasing Jesus. मेरी जीवन से सिर्फ वो ही जो वो चाहता है मैं कर सकूं। That should be my focus, my goal, my ambition, only ambition through my focused eye. वही आपकी आंखों के लगाए रहने का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो तू चाहे तेरी मर्जी मैं पूरी कर सकूं। The ultimate goal in our life, only one focus, only one ambition to please Jesus. क्योंकि एक ही जीवन है, एक ही उद्देश्य है और एक ही भावना आपके अंदर में होनी चाहिए कि आप उसके उद्देश्यों को अपने जीवन से कैसे पूरा कर सकें। Dear friends, focus your eyes upon Jesus. प्रिय मित्रों, अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाए रखें। So don't allow your mind the foolishness that will take you into the worldly sin and destroy your life and put you into the hell of fire. You should know that. अपनी संसार की अपनी आंखों को संसार की मूर्खता की बातों में ना ले जाना, क्योंकि वो उस नरक की आग में तुम्हें झोंक देंगी। Don't go out of your marriage life anymore. अपनी शादी से बाहर बिल्कुल ना जाना। Don't go out of your family life anymore. और अपने परिवार से बाहर भी ना जाना। Because these are the last days. The devil want to destroy us by giving us the unwanted lustful thoughts and thinking and destroy our vision. क्योंकि ये वो अंत के दिन है और शैतान चाहता है कि आपको ऐसे व्यभिचार वाली बातें आपके दिमाग में लाए और आपके परिवार को और आपके जीवन को वो बर्बाद करना चाहता है। The Bible is a book. All the examples are written and for our spiritual life. बाइबल एक ऐसी किताब है, आध्यात्मिक किताब है, जिसमें हमारी आत्मा के जीवन के बारे में सारी ही बातें लिखी गई हैं। Samson had a great test call for heavenly kingdom. जो सैमसन था उसकी एक बहुत बड़ी बुलाहट थी परमेश्वर के राज्य की। Because of his eyes, he never allowed the holiness of God. That's why he destroyed. क्योंकि उसने अपनी आंखों को उस पवित्रताई पे ना लगाए रखा और उसने बर्बादी को So देखा। our best example is Jesus Christ in the Bible. हमारा सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो यीशु मसीह है। So everyone, you note this word. This is very important. Luke 9:51. और हर कोई इस वचन को लिख ले, लूका 9 उसका 51। So here the Bible says the eyes of the Lord Jesus Christ turn towards Jerusalem. और इसमें ये लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह की आंखें मुड़ी यरूशलेम की ओर। The entire eyes and the face of Jesus Christ, the mind turned towards Jerusalem, towards the cross. तो यीशु मसीह की आंखें ही नहीं, उनका चेहरा भी और उनका शरीर भी पूरी तरह से मुड़ गया उस क्रूस की ओर, यरूशलेम की ओर। Luke 9:51 says, now it came to pass when the time had come for his ascension, Jesus steadfastly set his face, eyes to go to Jerusalem. और ये वचन इस तरह से कहता है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पे थे तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार एक दृढ़ता से कर लिया था। Dear friends, this should be your well-focused spiritual understanding. और आपकी ये एक समझ, आपकी अपनी समझ जो परमेश्वर ने आपको दी है, पूरी तरह से परमेश्वर पे लगाई हुई समझ ऐसी होनी चाहिए इस समय में। Jesus Christ, his face turned towards Jerusalem to fulfill the God's plan on the cross. यीशु मसीह ने अपने चेहरे को यरूशलेम की ओर मोड़ लिया था ताकि वो परमेश्वर के उस योजना को अपने जीवन में पूरा कर सके। Today ask the Lord, Lord, give me, change my eyes. I want to only look upon the cross, Lord. और आज आप परमेश्वर से मांगे कि मेरी आंखों को बदल दे कि मैं हर समय उस क्रूस को देखता रहूं। All the time before my eyes, the crucified Savior Jesus should be there. हर समय मेरी आंखों के सामने वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह उस क्रूस पे दुख उठाता हुआ मेरी आंखों के सामने रहे। Galatians 3:1 says, foolish Galatians, who bewitched you to turn away from the crucified Savior Jesus Christ. गलातियों 3:1 इस तरह से कहता है कि हे गलातियों, किसने तुम्हें भड़का दिया कि आप अब यीशु मसीह की तरफ से मुड़ गए? Foolish Galatians. मूर्ख गलातियों। So this word is for me also, for every one of us. ये वचन उतना ही मेरे लिए भी है और हम सबके लिए भी है। The worldly sins are the foolishness, dear friends. जो संसार की मूर्खता है वही हमारे को उसमें ले जाती है। Whoever you may be, if you are in the sin of adultery, repent today. कोई भी हो आप इस समय में यहाँ
अगर है, अगर आप उस विचार में हैं तो परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। So because this is the word of God, we can't compromise with this word of God anymore. ये परमेश्वर का वचन है और हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, Because the time Jesus is going to come back very soon. क्योंकि वो समय आ गया है कि यीशु मसीह आने वाला है। So because whosoever holy, let them be more holy. और इसलिए कहता है वचन, जो पवित्र है अपने आप को और पवित्र बनाओ। Jesus' face turned towards Jerusalem to fulfill the God's plan on the cross. यीशु मसीह ने अपने चेहरे को मोड़ लिया था उस यरूशलेम की ओर, उस परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। Hebrew 10:7 the Bible says, हिब्रू 10:7 इस तरह से कहता है, Jesus fulfilled the God's plan written about him in the scroll of the book. और उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने उन बातों को पूरा किया जो उन स्क्रोल्स में लिखा गया था उनके बारे में। So your focus should be the God's plan. और आपका जो ध्यान है पूरी तरह से परमेश्वर की योजना की ओर होना चाहिए। The worldly blessing will automatically given to you, but you should focus only for the fulfill the God's plan through your focused eye. संसार की जो आशीषें हैं आपको अपने आप मिल जाएंगी, पर आपकी आंखें हर समय यीशु मसीह की ओर लगी रहनी चाहिए। Dear friends, Jesus turned his eyes face towards the cross. प्रिय मित्रों, उस समय में यीशु मसीह ने अपनी आंखें, अपने चेहरे को मोड़ लिया यरूशलेम की ओर, उस क्रूस की ओर। Every day once you get up from your bed, हर दिन जब आप अपने उस बिस्तर से उठते हैं, your eyes and face should be focused on only Jesus, the crucified Savior. आपकी आंखें उस ओर लगी होनी चाहिए कि वो परमेश्वर जिसने मेरे लिए उस दुख उठाया उस क्रूस के ऊपर। You cast all your burden upon the Lord for the whole day, He will care for you. वो अपने सारे बोझ को उसके ऊपर डाल दे और वो पूरे दिन आपका ध्यान रखेगा। So today, check your eyes. और आज अपनी आंखों को जांचें। God want your eyes should be fully bright with a focus towards the cross. परमेश्वर चाहता है कि आपकी आंखें पूरी तरह से ज्योतिमान हो और पूरी तरह से देखती हो उसी की ओर। Jesus want to give you one more chance. एक और वो आपको मौका देना चाहता है। So whatever it may be the sin, the Holy Spirit will convict your sin, not any man. चाहे जो भी आपका पाप हो, वो पवित्र आत्मा आपको बता देगी कि क्या है और आप परमेश्वर से माफी मांग लें। The Holy Spirit came to convict the sin of the people. होली पवित्र आत्मा इसलिए आई कि आपके पापों को आप पे जाहिर कर सके। So how many of you dedicate your life for Jesus? आप में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन को यीशु मसीह को दे देना चाहते हैं? Everyone, you close your eyes. Whoever able to kneel down and pray, you kneel down and pray right now. हर कोई अपनी आंखों को बंद कर ले और जो घुटनों पे आ सकते हैं आ जाएं और हम प्रार्थना में चलते हैं। Because this is a high time, we can't compromise with the sinful things ये वो anymore. समय है कि अब हम पाप के जीवन की ओर नहीं ध्यान दे सकते हैं। Because there is no time, friend. This is the time we have to awake and do the God's plan. क्योंकि अब वो समय बचा ही नहीं है, हमें उठ जाना है, जाग जाना है, और क्योंकि परमेश्वर का समय आ गया है। How long we will live the two-minded life? कितने दिनों तक हम दो तरीके के दिमाग से जीते रहेंगे? So today only the cross should be before our और eyes. आज इस समय में सिर्फ वो क्रूस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। How many of you can ask the God's forgiveness today? कितने लोग इस समय में परमेश्वर से अपने लिए माफी मांगना चाहते हैं? Because the Holy Spirit is speaking to you about your sin right क्योंकि इस now. समय में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रही है आपके जीवन के पापों के बारे में। Today is the last day for your sinful things. आज वो आखिरी दिन है उस पाप के जीवन का। Today the mighty Holy Spirit is going to be come upon you and cleanse you from all your sin आज today. वो पवित्र आत्मा बहुत आयत से आपके ऊपर उतरेगा और आपको पापों से धो देगा। The blood of Jesus Christ is coming and cleansing you right यीशु now. मसीह का लहू आपके ऊपर आ रहा है और आपको पापों से धो रहा है। Everyone, you open your mouth and cry for your अपने salvation. मुंह को खोले और अपने उद्धार के लिए मांगे यीशु मसीह से। You can cry for your heavenly blessing. रो रो के मांगे परमेश्वर वो स्वर्गीय आशीषों से मेरे जीवन को भर दे। Lord, I should enter through the narrow door, the heavenly door. परमेश्वर मैं तेरे राज्य में उस संक्रिय दरवाजे से होके उस स्वर्ग में आने पाऊं। Lord, hereafter I will not do any sin. आज से मैं कोई भी पाप ना करूंगा। Jesus, forgive me. यीशु मुझे माफ कर दे। Jesus, forgive मुझे me. माफ कर दे यीशु। Everyone, you cry for your salvation रो today. रो के मांगे अपने उद्धार के लिए उस परमेश्वर
यीशु से। You have to work hard for to fulfill the God's plan through the salvation. आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस उद्धार को अपने जीवन में पाने के लिए। The Lord want to bless you. You will enter through the narrow gate of heaven. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा जब आप उस स्वर्गीय दरवाजों से, संक्रिय दरवाजों से अंदर चले जाएंगे। Your spiritual eyes and your spiritual focus should be only heaven. आपकी आत्मिक आंखें और ध्यान हर समय परमेश्वर के उस स्वर्ग की ओर होना चाहिए। The worldly blessings will automatically come to you. संसार की आशीषें अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। Seek first God's kingdom and His righteousness. परमेश्वर की राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करें। All the worldly things will be given to और you. संसार की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। All the worldly blessing will be given to संसार you. की आशीषें आपको दी जाएंगी। Everyone, you praise God right now. परमेश्वर की महिमा करे अपने मुंह को खोल के हर कोई जन इस समय में। Today is the day of the आज salvation. वो दिन है जो उद्धार का दिन है। Today you can openly, you can confess and you can boldly say, Hosanna in the highest. आज आप अपने मुंह को खोलें और कहें परमेश्वर का पुत्र जो होसाना, जो यीशु है, वो ऊंचाइयों पे है। Now you are eligible to say, Hosanna in the हर कोई highest. इस बात को बोले होसाना इन द हाईएस्ट। Everyone, let us praise God हर now. कोई परमेश्वर की महिमा को करे। Now the Holy Spirit is coming upon every one of पवित्र आत्मा आप लोगों you. के ऊपर उतर रहा है। Everyone be filled with the Holy Spirit हर कोई पवित्र आत्मा now. से भर जाए। All the sinful addictions are हर gone. आपकी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाए। The sinful addiction can't overcome you वो anymore. आपकी एडिक्शन की आत्मा आपके ऊपर नहीं आ सकती है। You will live a holy आप life. पवित्र आत्मा को के जीवन को जिएंगे। You will read the Bible हर regularly. रोज आप उस बाइबल को लगातार पढ़ते You will रहेंगे। pray more आप time. और प्रार्थना में समय बिताएंगे। You will live a successful Christian आप life. एक अच्छा मसीही जीवन जिएंगे। You will live the successful spiritual आप एक life. बहुत ही अच्छा आत्मिक जीवन जिएंगे। Jesus will use you mightily. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। Jesus already chosen you to do the God's इसीलिए ministry. परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके कार्यों को कर सकें। Every family should do the God's हर ministry. एक परिवार परमेश्वर के उस कार्य को करे। Every family should filled with the Holy हर Spirit. परिवार इस समय में पवित्र आत्मा से भर जाए। Your home should be like a kingdom of heaven. आपका जो घर है वो स्वर्ग के राज्य के जैसा होना चाहिए। Lord, we thank you for the blessings. परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ इन आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन।